All right. Strong acids and strong and weak acids and bases. Let's start with strong acids first. Whenever we say the term strong acids, it means we are referring to the acid being strong or it being dissociated completely in water. अब उसने सबसे पहले जो एक बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है वो ये कि एसिड की स्ट्रेंथ या वीकनेस या अल्कली की स्ट्रेंथ या वीकनेस आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन से कंपेयर नहीं करेंगे। जब भी हम एसिड या बेसिस के लिए वीक या स्ट्रॉन्ग के वर्ड यूज करते हैं तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए होता है और कॉन्सेंट्रेशन के लिए नहीं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है हम नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब डिसॉल्व की बात कर रहे होते हैं और वर्ड्स हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। दिस मींस हाउ मच अमाउंट ऑफ एसिड इज देयर एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और वाटर इज देयर। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब ये होता है। स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब ये होता है कि अगर हम उस एसिड के लिए एक डिसोसिएशन इक्वेशन लिखें जैसे कि HCl के लिए आपके सामने लिखी हुई है तो स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ कि वो एसिड कितना डिसोसिएट होता है। HCl के लिए यूजुअली ये क्वेश्चन लिखते हुए हम एक इरिवर्सिबल एरो का यूज करते हैं। ये हम इसलिए कर रहे होते हैं if your position of equilibrium is far over to the right, this is almost an irreversible reaction. Why this acid loves to get dissolved in water, gives out away all of its proton which are actually taken up by water and gives away the negative ion separately. ठीक है? So the pH of 0.1 mole per decimeter cube of this solution is pH 1. This is pretty low of a pH, which actually represents the strength. Lower the pH, stronger is the acid, or the more concentrated is the solution. Okay. So pH of solution depends upon concentration of these hydroxynium ions. Okay. The higher the concentration of hydroxynium ions, the lower is the pH. ठीक तो मैंने दोनों बातों को कंफर्म कर दिया द बुक कंफर्म्स वन थिंग विद द अदर एंड द सेकंड वन विद द फर्स्ट वन ऑफ कोर्स द लो pH shows that there is a high concentration of hydroxynium ions in solution. Acids that dissociate almost completely in aqueous solution are called strong acids. Mineral acids जितने हैं हमारे पास वो सब strong है हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक नाइट्रिक ये तमाम के तमाम strong acids है। Now, this means we are talking about dissociation. Dissociation means breakdown into its hydrogen ions and the negative ion. Okay, so moving on. Important hydrogen ions aqueous solution में correctly हम write करते हैं hydroxonium ions या simply calling them oxonium ions. ठीक है, ये often acceptable होता है कि आप इसके structure को simplify कर दें, water को equation से निकाल दें, HCl को सीधा सीधा H positive plus Cl negative लिखते हैं। ठीक है, वीक एसिड की जब बारी है तो वीक एसिड को इस तरह से लिखते हैं। तो वीक एसिड की बात करते हैं हम यूजुअली एथेनोइक एसिड की एग्जांपल देते हैं। अगर उसकी सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब तो ये स्लाइटली आयनाइज होता है ना। सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन फॉर अ फेयर कंपैरिजन। ठीक है, so that it's not about concentrated and dilute solutions anymore. जब आप सेम कॉन्सेंट्रेशन दोनों की कंसिडर करेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन से बात हटकर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ पर आ जाएगी। Now, there are more molecules of ethanoic acid in the solution than its ions, which is ethanoate ion, the negative ion, and hydroxonium ion, or simply speaking, oxonium ion, ठीक है, उनकी strength कम होती है और इसकी molecular form ज़्यादा exist करती है। Position of equilibrium well over to the left होती है, वो of course reversible का भी मतलब है कि there are products combining and forming the reactant. pH 0.1 mole per decimeter cube solution की 2.9 है. The pH is much higher as compared to the pH of hydrochloric acid, which was actually 1 at this point. So in comparison, definitely this is a weak acid. This is because concentration of hydroxonium ions is far lower. Now, if the ACE is only partially dissociated in solution, we call these acids as weak acids. They include most organic acids, hydrocyanic acid, hydrogen sulfide, carbonic acid, ethanoic, methanoic, benzoic. These are all examples of weak acids. Mostly organic acids are weak acids. Okay, although sometimes we talk about weak acid, carbonic acid, you'll never see a bottle of it. ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है वाटर में, तो हम इस तरह का सेटअप दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बनिक एसिड के लिए यूजुअली हम इसके लिए कभी भी वीक एसिड के लिए बात नहीं करते दैट टू कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर इज अ पार्ट ऑफ मेनी ऑफ आवर कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसके अंदर भी इसी तरह का इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा होता है। ठीक है,
The amount of CO2 that forms undissociated carbonic acid H2CO3 is very small, as H2CO3 ionizes So the amount of CO2 that forms undissociated carbonic acid H2CO3 के केस के लिए बहुत small part H2CO3 का होगा जो आयनाइज करेगा H2CO3 बड़े अच्छे तरीके से आयनाइज करता है तो बहुत small form होगी जो undissociated होगी. Okay, this is because we have already considered this to be an unstable acid. ठीक है, ये हम बात कर चुके होते हैं. Even so much so कि चूंकि real life example से आपको clear है, you already know that we always try to use the cold drink bottle in a chilled form, so lower temperature पे ये acid फिर भी stable होता है, but as soon as you increase the temperature even by a little bit, ठीक है, what happens that it starts decomposing, carbon dioxide starts coming out of the whole solution and bubbles out really readily. So H2CO3, bubbling, soft drinks, you already know about all of this. तो वो आयनाइज करना उसका, ठीक है, या उसका डिकम्पोज करना इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत इजी है. आई गेस इस चीज का तो पहले से पता होता है, बिकॉज दिस हैज ऑलरेडी बीन टॉट एज अ प्रीरेक्विजिट इन O levels. So moving on, sulfuric acid has two hydrogen ions that can ionize. The first hydrogen to ionize dissociates almost completely, ठीक है, और HSO4 नेगेटिव बनता है. HSO4 नेगेटिव वीक एसिड है, ठीक है, और हमारे पास वेट व्हाट पर बात तो समझ में आता है. व्हाट, there must be some misprinting. Do you have a hard copy of the book? Anyone? Yes, The sir. actual book. The equation written at the last part, important. I don't think that equation is correct. Please check it out. Compare it. The one up top is correct. H2SO4 does break down into H positive and HSO4 negative. But how is that possible that HSO4 is broken down into HSO4 again, and plus that gives one hydrogen ion? It must be SO4 negative too, if we're going to work it like that. ये ऐसे नहीं होना चाहिए. I don't know कि आपकी बुक में ठीक है या नहीं, लेकिन ये यूं होना चाहिए. HSO4 negative breaks down into H positive and SO4 negative. So can we compare? Sir, book में वही लिखा हुआ है. बुक में वही लिखा हुआ है. वही वाला? Yes, sir. HSO4 Okay. negative. All right. Then I think that must be a mistake because you would never be able to balance the equation. इसे correct करें. This must be H positive and SO4 negative too. ठीक है? Okay. यहाँ पर ये weak acid के तौर पे behave कर रहा है, and you can understand the difference from this and this. So clearly now you know, और हमने ये ऊपर भी यही वाला काम किया है, ठीक है. CH3COOH के साथ वाटर के लिए हमने ये रिवर्सिबल लगाया. अगर आप वैसे भी ना लिखें, सिर्फ ऐसे भी लिख लें तो भी ये क्लियर है. और HCl के लिए हम irreversible arrows लगा रहे हैं. So this is proving this to be a strong acid and this to be a weak one. ठीक है. If I go back down again, it would be clear that H2SO4 is a strong acid and HSO4 negative is a weak acid. ठीक है. तो आई गेस नाउ इट क्लैरिफाइज फॉर यू कि आपके पास किस तरह से तरतीब चेंज हो रही होती है. क्लियर ना? Yes, sir. ओके. स्ट्रॉन्ग बेसिस वैसे वर्षा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व करेगा तो हम इसे इस तरह की क्वेश्चन लिख सकते हैं. इरिवर्सिबल, स्ट्रेट एरो, इक्विलिब्रियम पोजीशन, फार ओवर टू द राइट. ठीक है. हाईली अल्कलाइन होगा, कंसंट्रेशन जिसकी भी प्रेजेंट हो उसके अंदर, ठीक है. और 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के लिए बात हो तो पीएच 13 आती है. ठीक है. बेसिस जो डिसोसिएट कर लेती हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट इन सॉल्यूशन, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं. ग्रुप 1 मेटल हाइड्रोक्साइड तमाम स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं. यहाँ पर वो स्पेसिफाई कर रहा है खास टाइप के, तो इस बात को ध्यान में रखना है ताकि वो कोई भी कंसिडर करें तो आप उसे
एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे कंसिडर कर लें, बी इट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और रुबिडियम और सीजियम, जिसकी भी बात हो रही हो, वीक बेसिस, ठीक है। When ammonia dissolves and reacts in water to form a solution, concentration की 0.1 मोल है, तो slightly ionized होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें अमोनिया के होते हैं, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वेल ओवर टू द लेफ्ट है, वो आप समझ आ सकता है इस साइन से, ठीक है। अगर इसकी पीएच सेम कंसिडर की जाए फॉर अ फेयर कंपैरिजन, दिस इज 11.1, so much so that you'd understand the difference between 1 and the values 2.9, ठीक है, and 13 and the values 11.1, exactly same differences है, ठीक है। 0.9 वाली तरतीब में ना अगर आप देखें तो आपको वही वाले डिफरेंसेस नजर आएंगे, ठीक। तो moving on, this is because the concentration of hydroxide ions is far lower, सही। बेसिस जो डिसोसिएट करती हैं स्मॉल एक्सटेंट पे वीक बेसिस अमोनिया अमाइंस, जो कि हम आगे शायद कर लेंगे इसी पोर्शन में, दिस इज अ पार्ट ऑफ एएस चैप्टर 16 मींस, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड ट्रांजिशन मेटल्स के वीक बेसिस हैं। आप देखेंगे कि एसिड के लिए उसने मिनरल और ऑर्गेनिक लिखा था, बेसिस के लिए वो ग्रुप 1 और कुछ और स्पेसिफाई कर रहा है। ये इसीलिए है ताकि पेपर्स में क्वेश्चन आए तो आपके पास आपको अंदाजा हो, एंड दे यूजुअली ट्राई टू स्टिक टू दीज एग्जांपल्स। इससे बाहर से भी हैं फेयर क्वेश्चन एक्सेस करते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जांपल्स इसी से होती हैं, ठीक। तो यू हैव एन आइडिया हाउ दिस वर्क। नाउ हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश अ वीक एसिड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड? वीक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे पास पीएच वैल्यूज हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है और रिएक्टिविटी के कंपैरिजन भी हैं, ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का ये कंपैरिजन करने के लिए हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस इस्तेमाल करते हैं दोनों स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के, लेकिन कम कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेम रखते हैं ताकि कंपैरिजन फेयर हो, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिफोर वी गेट स्टार्टेड आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए अगले टेबल में एक बहुत अच्छा कंपैरिजन देने वाला है। pH values, dilute solution strong acid के lower pH values रखते हैं those of weak acid same concentration पे। इसकी वजह ये concentration of hydrogen ions greater हो जाती है strong acids में, ठीक। उसने उसकी रीजन भी बता दिया कि क्योंकि हम क्यों जा रहे होते हैं weak lower concentration solutions पे या dilute solutions पे। In order to give you an idea, उसने 1 mole per decimeter cube, 0.1 mole per decimeter cube और 0.01 mole per decimeter cube, यानी एक्चुअल सॉल्यूशन 1/10 ऑफ दैट सॉल्यूशन एंड 1/100 ऑफ दैट सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके। क्योंकि पीएच लॉग की बेस पे होता है तो लिटरली हमारे पास जो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, वो हमें बड़ा अच्छा आइडिया दे रहे होते हैं। क्योंकि लॉग जो होता है वो बेस 10 में होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है कि 10 रेज टू पावर 1 के हिसाब से एक स्टेप का डिफरेंस, 10 रेज टू पावर 2 के हिसाब से दूसरे स्टेप का डिफरेंस, यूं एक नंबर पीएच में सिर्फ चेंज होता है और आपके पास 10 टाइम्स डिफरेंस आ रहा होता है। हेंस 0 to 1 और 1 to 2, हमारे पास 1 to 10 और 1 to 100 के वाले डिफरेंसेस के हिसाब से मैथमेटिकली बात हो रही है, वो डिफरेंसेस आ जाते हैं। That's what's happening over here. I hope you understand the mathematics as I am telling you to. ठीक है? Ethanoic acid is weak acid 2.4, 2.9, 3.4. सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बेस के हिसाब से बात की जाए वाइस वर्सा, उसकी पीएच वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, बेसिक हो जाएंगी, अमोनिया के लिए डिफरेंट आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम इसे हम डिटरमिन कर सकते हैं पीएच कैसे। नंबर वन, हम पीएच इलेक्ट्रोड ले डिप कर दें उसे सिस्टम में, लिटरली वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीएच मीटर, ठीक है। पीएच मीटर कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड, पीएच इलेक्ट्रोड से शो करता है पीएच वैल्यूज, ठीक है। डिप करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को इन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड नोटिंग द कलर चेंज। व्हेन वी कंपेयर द कलर विद दैट ऑन द चार्ट, इट शोज द कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। तो ये बड़ा इजी होता है हमारे लिए करना। हम अगर हमारे पास पीएच मीटर हो तो हम उसे हमेशा प्रेफर करते हैं। ये बात मैंने ओ लेवल्स में भी समझाई थी, ये बात ए लेवल्स में भी इसी तरह से वर्क करती है। pH meter digital होता है, so the values are really trustworthy. 1, 2, pH meter usually जो होता है वो हमारे पास एक डेसिमल से पहले की वैल्यू के अलावा डेसिमल के बाद भी हमारे पास 1 या 2 पॉइंट्स में वैल्यू बता रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है। इंडिकेटर पेपर हमारे पास
तमाम बाकी इंडिकेटर्स में सबसे सुपीरियर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसका जो कलर चेंज होता है, अगेन हमें वो चार्ट से कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये ह्यूमन आई पे डिपेंड करता है, तो देयर आर चांसेस ऑफ एरर विद इट। So obviously we're going to prefer this. We're not going to prefer this, but this can be your second preference. This belongs to all three actually. Let's be honest, ये paper 1, 2, 3 के अलावा paper 5 के लिए भी इतना important है, ठीक है। तो इस चीज का आइडिया रखना है कि हम हमेशा preferences में अपने आंसर्स भी इसी तरह से लिखेंगे। Second one is electrical conductivity. Electrical conductivity is a pretty good way to get our answers, and those answers are actually reliable too. Dilute solution strong acids के greater electrical conductivity देते हैं than those of weak acid. क्यों? क्योंकि इनमें ज़्यादा number of ions होते हैं. Now let me take you back to it. The point that we need to explain over here. Okay, ये strong base है. इसमें molecular form कम और ionic forms maximum है. ये वीक बेस है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, आयंस कम एग्जिस्ट करते हैं। The less the number of ions, the lower is going to be the electrical conductivity. More the number of ions, the higher is going to be the electrical conductivity. तो strong acid की conductivity हमेशा weak acid की निस्बत ज्यादा ही होगी, ठीक है, सेम कॉन्सेंट्रेशन के लिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ग्रेटर होती है स्ट्रॉन्ग एसिड में, ये सबसे पहली रीजन है। और हाइड्रोजन आयंस आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आयंस ऑन द प्लैनेट, तो इनकी मूवमेंट बहुत स्पीडी होती है और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिप किस तरह से कर सकते हैं? कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोड लें, उसे डिप करने सोल्यूशन ऑफ एसिड में, हमने सेम कॉन्सेंट्रेशन के फेयर रिजल्ट के लिए सोल्यूशन बनाए होते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी मीटर कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड से, जो कि शो कर रहा होता है आपको कंडक्टिविटी वैल्यूज, ठीक। उसने यहाँ पर किसी किस्म के यूनिट्स डिस्कस करने की कोशिश नहीं की हुई, दैट पार्ट इज मोर रिलेटेड टू फिजिक्स। घबराना नहीं है, इससे हमारे पास 4 to 5 क्वेश्चंस आपको पेपर 1 पेपर 2 में नजर आते हैं। कंडक्टिविटी के यूनिट्स के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता कि आपको परेशान किया जाए कि क्या कंडक्टिविटी के यूनिट्स थे। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, अगर आप पढ़ेंगे पास पेपर क्वेश्चंस, आपको आइडिया होगा कि कंडक्टिविटी की यूनिट्स को सिनेरियो के अंदर एक्सप्लेन कर देता है, उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछता है। तो डोंट नेवर वरी अबाउट इट कि क्या यूनिट्स हैं, क्या होगा चीज, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में बड़ा वेल एक्सप्लेन्ड होता है। ब्लाइंड प्ले वो नहीं करते, टैक्टिकल प्ले होता है, क्लेवर वर्ड प्ले होता है, बट ब्लाइंड प्ले नहीं होता, ठीक है। रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड के सेम कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट रिएक्टिविटी देते हैं। रिएक्टिव मेटल्स इसके लिए बहुत अच्छा हमें कंपैरिजन दे सकते हैं, सच एज मैग्नीशियम। नाउ व्हाई डू वी चूज मैग्नीशियम? ठीक है, मैग्नीशियम हमारे पास, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो, ठीक है, सही, ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज का ऊपर का पोर्शन है रिएक्टिव मेटल्स का। नाउ दीज आर टू रिएक्टिव, ये हमारे पास जो रिएक्शंस करते हैं, ये एक्सप्लोसिव या अनसेफ हद तक रिएक्शंस करते हैं। ये बहुत सारी जगहों पर जो ना रेजिस्ट करता है करोजन को, लिहाजा एसिड्स की वर्किंग को भी ये रेजिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज काइंड लाइक द बेस्ट ऑप्शन। ये जहन में रखनी बात, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज की फर्दर डिस्कशन आगे भी आनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर, ठीक। तो मैग्नीशियम जो होता है हमारे पास, मैग्नीशियम बहुत अच्छा मेटल है। हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐड करते हैं, स्टडी स्ट्रीम हाइड्रोजन बबल्स की ऑब्जर्व की जा सकती है। जब हम एक और पीस ऑफ मैग्नीशियम लेंगे और वीक एसिड में सेम कॉन्सेंट्रेशन के ऐड करेंगे, वेरी लेस नंबर ऑफ बबल्स या फ्यू बबल्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ग्रेटर होती है स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो आपके पास रिएक्शन ज्यादा होता है। दिस इज मोर लाइक अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन जहां जहां बन रहे होते हैं मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर सकता है, वो वीक एसिड में वैसे डिस्प्लेस नहीं हो सकता। This actually finishes the topic. The next one is indicators in acid-base titration. Any questions from the previous topic? Indicators in acid-base titration. हम पहले से जानते हैं कि indicators हमारे पास endpoint डिटेक्ट करने के लिए होते हैं acid alkali titrations में। हमने litmus टेस्ट भी किए हुए हैं सब्सटेंस को चेक करने के लिए कि वो एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है। लिटमस पेपर टेस्ट बहुत इजी होते हैं सिंस जस्ट टू कलर्स आर इन्वॉल्व। रेड टू ब्लू मींस अल्कलाइन, ब्लू टू रेड मींस एसिडिक, एंड दैट्स हाउ सिंपल इट इज। बाकी इंडिकेटर्स में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास 3 कलर सिस्टम होता है यूजुअली। There is a different color for neutral medium, different for acidic, different for alkaline. However,
phenolphthalein still stands at a disadvantage. अगर आपको याद हो जो इंडिकेटर्स आपने ओ लेवल IGCSE में किए हैं उसमें phenolphthalein उन इंडिकेटर्स में आता है जो डिसएडवांटेज पे होता है बिकॉज वो 3 कलर सिस्टम शो नहीं करता। ठीक है, ओके। फिनोक्सिन के लिए जहां तक बात है तो हम जानते हैं कि सिर्फ पिंक और कलरलेस शो करता है। इन्होंने बाकायदा फिनोक्सिन का यहाँ पर स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, उन्होंने अल्कलाइन और एसिडिक शो किए हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि एसिडिक और न्यूट्रल दोनों मीडियम्स में ये कलरलेस होता है और अल्कलाइन में ये पिंक होता है। उन्होंने अल्कलाइन के लिए फॉरवर्ड और एसिड के लिए रिवर्स मीडियम उन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड होंगे वैसा चेंज आ जाएगा। Pink to colorless means it's going towards acidic. Colorless to pink means it's going towards alkaline. See? You do not need to memorize the structure. However, इंडिकेटर के जितने कलर्स होते हैं वो जरूर याद रखने चाहिए। ठीक है, वो वहां पर भी मेमोराइजेशन पार्ट था and it's going to be same memorization part over here. So let's introduce indicators. Acid based indicators dyes होती हैं, mixture of dyes होती हैं, ये अपने कलर चेंज करते हैं स्पेसिफिक पीएच रेंज में। हम आगे चल के पीएच रेंजेस डिफाइन करने वाले हैं। सिंपल टर्म्स में इंडिकेटर्स को हम कंसिडर करते हैं वीक एसिड जो अपने एसिड के अंदर, ठीक है, या अपने कॉन्जुगेट बेस के अंदर डिफरेंट कलर्स रखते हैं। एसिड के अंदर हम उन्हें शो करते हैं एज HIN. H stands for the hydrogen ion they are going to donate and IN stands for the indicator. जब ये डिसॉल्व करेगा वाटर सिस्टम में तो हम जानते हैं H पॉजिटिव लैदा हो जाएगा और IN नेगेटिव, नेगेटिव आयन जो उनसे होता है वो लैदा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर HCl को इस एग्जांपल के लिए कंसीडर किया जाए तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। सो ये Cl जो भी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं एंड एज यू कैन सी द होल थिंग ओवर हियर, ठीक है, कि किस तरह से आपके पास एक पूरे का पूरा पार्ट जो होता है उसमें से H आयंस चले जाते हैं। तो जैसे कि इस केस में से हमारे पास हाइड्रोजन आयंस चले गए और वो नेगेटिव रह गया। ठीक, दोनों हाइड्रोजन आयंस एक्चुअली जा रहे हैं, सही। तो इसलिए हम इसे इस तरह से लिखते हैं। Example flowers की the acid base idea was taken definitely from flowers. There are many examples. ये तो सिर्फ पेलार्गोनियम की एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन एग्जाम्पल्स और बहुत सारी और एग्जाम्पल्स हमारी डिफरेंट ओ लेवल बुक्स में एग्जिस्ट करती हैं और लिटरली उसमें रेड, पर्पल या ब्लू फ्लावर्स की पिक्चर्स भी हमारे पास दी हुई हैं। ठीक है, इस केस में हमारे पास उसने शो किया हुआ है वो डाई जो इस फ्लावर के अंदर होती है, उस डाई के पार्ट्स हैं एंड दैट्स द 3 कलर सिस्टम आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अर्लियर वही चीज यहाँ पर दी हुई है, सही। Violet in neutral medium which converts into red form upon the addition of an acid and which converts to blue form upon the addition of an alkali। ठीक है, और लिटरली हम इन्हीं को ही यूज कर रहे होते हैं। Okay, previously I was talking about litmus paper and the only 2 options were blue to red and red to blue. However, this may seem like a litmus solution condition. Now let me tell you, litmus paper हमारे पास सिर्फ 2 कलर शो कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है। लेकिन लिटमस सोल्यूशन ये हम ओ लेवल्स में भी डिफरेंशिएट करने के लिए कहते हैं कि आप मिस्टेक ना करें, सोल्यूशन और पेपर की कैपेसिटीज डिफरेंट है। पेपर सिर्फ रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड शो करता है, हाउएवर लिटमस सोल्यूशन ओरिजिनली न्यूट्रली स्पीकिंग वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, एंड इट कैन कन्वर्ट इनटू रेड और ब्लू अपॉन द एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली respectively, which can be denoted as H positive and OH negative ion respectively again। ठीक है, तो I hope you get the idea. Acid और base different side of equations पे हम इन्हें conjugate कहते हैं with each other, ठीक है। Conjugate actually is more like a partner, it's more like a neighbor, और ये हमेशा एक दूसरे में convert किए जा सकते हैं by the gain and loss of hydrogen ion। वो जो equation में पहले लिखा था वही उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये unionized indicator color है, जो भी ये color हो, color A, उसमें H ions इसके साथ हैं। ये तब हो गया जब इसने हाइड्रोजन आयन गेन कर ली। As soon as it loses hydrogen ion, it becomes this। ये conjugate base color B है। तो हम एसिड और बेस को शो ही इस तरह से कर रहे होते हैं। देखें बहुत इजी है, ये यहाँ पर लोरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, ये डोनर है, इसलिए हम इसे अनआयनाइज्ड या एसिडिक पार्ट कह रहे हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है। ये एक्सेप्टर है हाइड्रोजन आयन का, जब हाइड्रोजन आयन इसमें एड अप होते हैं तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आता है। That's why
इसको हम बेस और इसको एसिड कह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए हम कॉन्जुगेट का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसी के अंदर H डालेंगे तो एसिड फॉर्म हो जाएगा, और इसी से अगर उसी एसिड से H निकलेगा तो यही वाला कॉन्जुगेट फॉर्म होगा। तो दिस इज मोर लाइक अ नेबर। हमारे पास अगर इसी इक्वेशन को मैं लिखता हूँ HCl के लिए, दो कि वो रिवर्सिबल इक्वेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन समझाने की हद से करो कि वो बड़ा इजी होता है, हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो H पॉजिटिव हो और हमारे पास Cl नेगेटिव हो, then Cl नेगेटिव इज लाइक द कॉन्जुगेट बेस। ये जब भी H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा HCl फॉर्म होगा। दो दिस एग्जाम्पल कैन नॉट बी यूज, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये हमारे पास इरिवर्सिबल सॉर्ट ऑफ होता है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम यूजुअली वीक की बात कर रहे होते हैं इस केस में, ठीक है। बट just to make my point, I can take that example. Okay, adding acid to this indicator solution, अब वो सारी वो discussions कर रहा है जो हम exactly किसी भी weak dynamic equilibrium पर, weak acid के लिए किसी भी dynamic equilibrium पर पहले भी डिस्कस करते हैं as per Fletcher's principle। अगर हम एसिड ऐड करते हैं इंडिकेटर सोल्यूशन में तो शिफ्ट कर देता है इक्विलिब्रियम पोजीशन टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। हमारे पास H पॉजिटिव आयंस इसके अंदर ऐड होते हैं, ये एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये बेसिक होता है, और ये दोबारा अनआयनाइज्ड इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास A के ज्यादा मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, रिएक्शन इज गोइंग रिवर्स, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द लेफ्ट। ऐड करें अल्कली को, शिफ्ट कर जाएगी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि अल्कली के अंदर जो OH नेगेटिव आयंस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दोबारा डिकम्पोज करना शुरू कर देगा, ये आयनाइज करना शुरू कर देगा, H पॉजिटिव आयंस देगा जो कि अल्कली को OH को न्यूट्रलाइज करेंगे इनटू फॉर्मिंग वाटर, ठीक है। इस सूरत में क्या होगा, इक्वेशन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, इक्विलिब्रियम की पोजीशन टुवर्ड्स राइट, इक्वेशन टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड फेवर होगी, और हमारे पास अब ज्यादा आयंस बनेंगे कलर बी के लिए। कलर ऑफ इंडिकेटर डिपेंड करता है रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ HIN और IN नेगेटिव पे। कलर ऑफ इंडिकेटर ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन डिपेंड कर रहा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट पर, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास कलर ऑफ इंडिकेटर इनकी रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ये और ये। रिलेटिव का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू वन अनदर, किसकी किससे इन कंपैरिजन ज्यादा है। हमने बात की है कि जब कंपैरिजन में ये ज्यादा है तो हमारे पास बेस कलर ये आएगा, जब कंपैरिजन में ये ज्यादा है तो हमारे पास बेस कलर ये आएगा, ठीक है। तो कलर ऑफ इंडिकेटर टाइट्रेशन में एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर इनकी रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस को डिस्कस किया जाए तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तभी ज्यादा होती है जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स ब्रेकडाउन होगा तो ये भी फॉर्म होगा और H पॉजिटिव भी फॉर्म होगा। अब बात को करने का अंदाज इस तरह का कि वो स्लाइटली कंफ्यूज है, लिहाजा फॉर द सेकंड सेंटेंस, एंड सिंस दैट सेंटेंस इज यूज्ड मोर इन पेपर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि H पॉजिटिव आयंस तभी बनते हैं जब ब्रेकडाउन होकर ये आयंस भी फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक। सो मूविंग ऑन, इंडिकेटर्स यूजुअली कलर चेंज करते हैं ओवर अ पीएच रेंज, ठीक है। और ये पीएच रेंज 1 to 2 पीएच यूनिट्स का होता है। 3 में अगर बात हो रही है तो कलर चेंज 4 या 5 पर जाकर आना शुरू हो जाएगा, 5 की बात हो रही है तो 6 या 7 पर, या फिर वापस 4 या 3 पर आकर चेंज आना शुरू हो जाएगा। मिडिल ऑफ द रेंज रिकग्नाइजेबल एंड पॉइंट हमारे पास इंडिकेटर के कलर के होते हैं। बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑफ कलर हमारे पास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं प्रोमोथाइम और ब्लू की, इस बात को बड़ा अच्छा समझा जा सकता है एग्जाम्पल से। तो वो येलो होता है एसिडिक सोल्यूशन में, ब्लू होता है अल्कलाइन सोल्यूशन में, उसका कलर चेंज pH 6 और 7.6 के दरमियान में आ रहा होता है। एंड पॉइंट जिसका ग्रीनिश ग्रे ग्रीनिश कलर होता है क्योंकि येलो और ब्लू का मिक्सचर जो है ग्रीन सा है, वो हमारे पास रफली 7 पर, इन दोनों के दरमियान में आ रहा होगा कहीं पर। तो वो दो एक्सट्रीम के दरमियान में हमारे पास कहीं पर वो थर्ड एक न्यूट्रल कलर आ रहा होता है। हम जानते हैं ये दोनों एक्सट्रीम्स में से ये एसिडिक एक्सट्रीम है उसका, और ये उसका अल्कलाइन एक्सट्रीम है, ठीक है। तो उसका एसिडिक एक्सट्रीम जो है उसके अंदर उसका येलो कलर है, उसका जो अल्कलाइन एक्सट्रीम है वो ब्लू कलर है, विच मीन्स कि आप डिफरेंटली हर इंडिकेटर को बता सकते हैं। हेंस द वेरी नेक्स्ट थिंग, ह्यूज टेबल, a huge table that actually tells you the names of the dials or the indicators, simply speaking। color low pH पर क्या होता है, pH range क्या है, उसका एंड पॉइंट इसमें से किस तरह पर आ रहा है, कलर हायर pH पर क्या हो सकता है, ठीक है। वो उन्होंने एग्जैक्टली बताया हुआ है। अब इसमें काफी सारे कलर्स होते हैं, तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जो आपको पहले से पता है, यू आर फेमिलियर विद मिथाइल ऑरेंज, यू आर फेमिलियर विद नॉक्सीन,
you are familiar with one of the bromophenol, blue और bromothiamol, इनमें से कोई एक पहले हमने जरूर पढ़ाया होता है लेवल्स में, ठीक है? तो you are familiar with 3 to 4 indicators, ठीक है? अब इसमें सारे एंड पॉइंट्स या सारे पीएच रेंजेस याद रखना जरूरी नहीं है, रट्टा मारने को मैं हरगिज नहीं कहता। अगर आप पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे, यू विल नोटिस कि सारे के सारे इंडिकेटर्स यूज नहीं होते। इसमें से 4 से 5 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिन्होंने रिपीटेडली यूज किए हुए हैं लेवल के पेपर्स में, एंड दैट्स गुड इनफ इफ यू रिमेंबर दोस। और उनको भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है। With a little bit of work and continuous interaction with same kind of questions, you'll automatically remember them. ठीक है? अब इसमें से अंडरस्टैंड करें, कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो एस्थेटिक एंड पर एंड पॉइंट्स रखते हैं। मैं बाकायदा न सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसा भी है जिसका अपना एंड पॉइंट एक्चुअली में एग्जैक्ट न्यूट्रल पर आ रहा होता है, और हमारे पास थोड़े से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो अल्कलाइन सिस्टम के अंदर आने। ठीक है, ये इनका एंड पॉइंट है। ये एक और कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर रहा होता है। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एंड पॉइंट जो होगा वो 7 पे ही सारे के सारे इंडिकेटर्स का आता होगा। वो एक सेंट्रल पॉइंट ना अपने दिमाग में 0 से 14 वाले पीएच स्केल का 7 ही निकालते हैं, 7 एज्यूम कर देते हैं। नाउ दिस ब्रेक्स दैट काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। जरूरी नहीं है कि हर इंडिकेटर का एंड पॉइंट या न्यूट्रलाइजेशन जो है वो 7 पे न्यूट्रल पॉइंट पे ही जाके होती हो, ये जरूरी नहीं है। Then you might have the question कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ऊपर या नीचे वो एंड पॉइंट दे सकते हैं या कलर चेंज दे सकते हैं? Yes, that is possible, and that is possible because हमारे पास मल्टीपल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हमारे पास मल्टीपल रेंजेस एग्जिस्ट करती हैं। तो वो 4 सिनेरियोज जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक अल्कली, या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली, या वीक एसिड और वीक अल्कली कंपैरिजंस हैं, वो चारों सिनेरियोज आगे डिस्कस किए गए हैं। और हम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे इस खास एग्जांपल के लिए फिनोक्सिलीन है, इस खास एग्जांपल के लिए ब्रोमोथाइमल ब्लू या येलो है, सॉरी ब्रोमोथाइमल ब्लू है, ठीक है? तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाला एंड पॉइंट डिफरेंस जो है ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है? तो